Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Ratio and Proportions, Indices and Logarithms. So we started with proportions last class. तो उसको आज अपने कंटिन्यू करेंगे एंड साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. बट सबसे पहले जितना पोर्शन हमने डिस्कस किया था उसका एक क्विक रिवीजन of the topic proportions. So what is proportion? Proportion is equality of two ratios. So when two ratios are equal to each other, they are said to be in proportion. So if A is to B is equal to C is to D, then A is to B is in proportion to C is to D. So we write it as this. Okay. So इसमें A is called the first term, B is called the second term, C is called the third term, and D is called the fourth term. First and the fourth term are called the extremes. Second and the third term are called means or middle terms. So when A by B is equal to C by D, then A into D is equal to C into B. So this means product of first and fourth term, that is product of extremes, is equal to product of means. This is through cross multiplication, cross product rule. Okay. Clear है? याद है कि नहीं? Next. Three quantities A, B, C of the same kind in same units are said to be in continuous proportion when A is to B is equal to B is to C. Right? So in this case, B is called the mean proportional. A is the first proportional and C is the third proportional. So when A is to B, that is A by B is equal to B is to C, that is B by C. Then on cross multiplication, B square is equal to A into C. So we can easily find out B as square root of A into C. So the mean proportional is the square root of the product of first and third proportional. Okay. So then continued proportional में अपने क्या discuss किए थे? When the ratio of first to the second, the ratio of second to the third, the ratio of third to the fourth are all equal, the numbers are said to be in proportion. That is, x is to y is equal to y is to z is equal to z is to w is equal to w is to p is equal to p is to q and so on. So we say that x, y, z, w, p and q are in continued proportion. Then inverse proportion, 4 by 5 का inverse proportion is 5 is to 4. याद करो इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिस्कस किए थे अपने, राइट? ओके. देन इसके बाद इलस्ट्रेशन 1 2, इलस्ट्रेशन 1 में एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5 ये किया था आपने, राइट? यहीं तक अपने किए थे. सो टुडे वी शैल start with properties of proportion. Properties of proportion, very easy to understand. The first property is when A is to B is equal to C is to D, these two ratios are in proportion, which means A by B is equal to C by D.
So A into D is equal to C into B by cross multiplication. So this is the first property. Okay. The second property, when A by B is equal to C by D, then it means that B by A is equal to D by C. दोनों ratios का inverse is also equal. When the two ratios are in proportion, क्या समझे अपने? When two ratios are in proportion, the inverse of the ratios are also in proportion. This property is called invertendo. Invertendo. ठीक है, राइट यानी रेशियोज को इन्वर्ट करेंगे. इन्वर्ट यानी इनवर्स. सो व्हेन टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, उनका जो इनवर्स है दे आर आल्सो इन प्रोपोर्शन. सो व्हेन a is to b and c is to d are in proportion, इन दोनों रेशियोज का इनवर्स आर आल्सो इन प्रोपोर्शन, which means b is to a and d is to c are also in proportion. Okay, so b by a is equal to d by c. Next, so when a by b, a is to b is in proportion to c is to d, that is a by b is equal to c by d. So can we say this, that a by c is equal to b by d? हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया. We can say this na, when a by b is equal to c by d, then a by c is equal to b by d. Yes Bani? Yes, sir. ठीक है. So when a is to b is equal to c is to d, then a is to c is equal to b is to d. This is called alternando. ठीक है, alternando. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Then when a by b is equal to c by d, so a is to b and c is to d are in proportion. अब LHS RHS में दोनों में +1 कर दो. दोनों में +1 कर दिया. ये सोनू +1 करने से क्या हो रहा है? LHS में a by b +1 is a plus b by b. RHS में c by d +1 is c plus d by d. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो. ठीक है. सो कॉम्पोनेंडो ये होता है. क्या होता है? when a is to b is in proportion to c is to d, then दोनों ratios में +1 करने से we get a plus b is to b and c plus d is to d are in proportion. ठीक है. so a plus b by b is equal to c plus d by d. डिविडेंडो, जैसे हमने +1 किया वैसे LHS एंड RHS में -1 कर देंगे तो what do we get? so when a by b is equal to c by d, LHS RHS में दोनों जगह -1 कर दो. so a by b -1 is equal to c by d -1. तो LHS में a minus b divided by b is equal to RHS में c minus d by d. so a is to b, sorry, a minus b is to b is in proportion to c minus d is to d. क्या बोला मैंने? a minus b is to b is in proportion to c minus d is to d. That is a minus b by b is equal to c minus d by d. क्लियर है? सो इस प्रॉपर्टी को अपने क्या बोलते हैं? डिविडेंडो. सो डिविडेंडो में अपने क्या कर रहे हैं?
-1, दोनों रेशियो से -1, एंड कॉम्पोनेंडो में अपने क्या करें, दोनों रेशियो से +1। क्लियर है? ओके। देन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंबाइन इफेक्ट, ये मेरा कॉम्पोनेंडो है और ये मेरा डिविडेंडो है। ठीक है, कॉम्पो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सो दिस इज 1, दिस इज 2, 1/2 कर दो। 1/2 करने से क्या होगा, बी बाई बी गेट्स कैंसल्ड ऑन दी LHS एंड बाई डी गेट्स कैंसल्ड ऑन दी RHS, है ना? समझ में आ रहा है? दिस So इज can you repeat what gets यस आई नो, cancelled? दिस इज कॉम्पोनेंडो, दिस इज डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो को 1 मार्क किया, डिविडेंडो को 2 मार्क किया। अब 1/2 कर दो, 1/2 यानी a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस d बाई d डिवाइडेड बाई c माइनस d बाई d। तो ये करने से क्या हो रहा है, देखो, b बाई b गेट्स कैंसल्ड in the LHS and d by d gets cancelled in the RHS। So result क्या मिल रहा है, a plus b divided by a minus b is equal to c plus d divided by c minus d, right? So this is the combined effect of componendo and dividendo। ठीक है, right? Okay, next, addendo। ठीक है, अडेंडो, अडेंडो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, वेरी इजी। If A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F is equal to F is to G, ठीक है, देन अडेंडो का प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, अडेंडो का प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं उसको समझते हैं। अडेंडो क्या बोलते हैं, when A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F is equal to F is to sorry is equal to G is to H, my mistake। So when A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F is equal to G is to H, G is to H है, कंटिन्यूड रेशियो नहीं है बटी। कंटिन्यूड रेशियो में क्या होगा, A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D is equal to D is to E is equal to E is to F, not continued ratio। So not continued ratio। So A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F is equal to G is to H। तो अडेंडो का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अडेंडो का प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो अडेंडो क्या बोलता है, सारे न्यूमरेटर्स का एडिशन। देन अडेंडो बोलता है ये सारे रेशियोज अगर इक्वल है, अडेंडो क्या बोलता है, जब ये सारे रेशियोज इक्वल है, देन हर एक रेशियो, ईच ऑफ दीज रेशियोज इज इक्वल टू, each of these ratios is equal to summation of the numerator divided by summation of the denominator। ये अडेंडो बोलता है। सो अडेंडो क्या बोलता है कि जब ऐसा है कि इस तरीके से रेशियोज आर इक्वल, इस तरीके से रेशियोज आर इक्वल दैट A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F is equal to G is to H, then each of these ratios is equal to the ratio which is formed by adding all the numerators divided by adding all the denominators।
समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी कि a by b is equal to a by b is equal to a plus c plus e plus g divided by b plus d plus f plus g. यानी कि c by d is also equal to a plus c plus e plus g divided by b plus d plus f plus h. यानी कि e by f is also equal to a plus c plus e plus g divided by b plus d plus f plus g. So हर एक रेशियो, each of these ratios is equal to this. Understood? समझ में आया? yes or no? यस सर। पानी क्लियर है? सर आपने बोला कि we add all the numerators and we add all the denominators. So that is only addendo, no? हम्म Hmm. अंडरस्टूड? Sir, can addendo be in a continuous proportion? नो. यानी ये जो अडेंडो है, all the ratios are equal to this. यानी a by b is equal to this, c by d is equal to this, e by f is equal to this, g by h is equal to this. ओके? सो इस तरीके से जब रेशियोज इक्वल है, then it is equal to a ratio which is formed by adding all the numerators as the first term and adding all the denominators as the second term. Okay, clear? Ratio का first term is called antecedent, second term is called consequent. अच्छा. Okay, अभी आया कैसे ये अडेंडो का प्रॉपर्टी का डेरिवेशन देखो. अगर अपने इसको k पकड़ लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a by b is equal to k, c by d is equal to k, e by f is equal to k, g by h is equal to k, right? यानी a by b is equal to k means what? a is equal to kb, c is equal to kd, e is equal to kf, and g is equal to kh. Now add all the numerators. a plus c plus e plus g को ऐड करके क्या मिलेगा? a is equal to kb, c is equal to kd, e is equal to kf, and g is equal to kh. अब RHS में k कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट्स में b प्लस डी प्लस f प्लस h आ जाएगा. सो k का वैल्यू विल बी क्या किया मैंने? इधर में इट विल बी g. ठीक है, क्लियर है?
सो k Yes, का sir. वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस c प्लस e प्लस g डिवाइडेड बाई b प्लस d प्लस f प्लस h इज इक्वल टू k। यानी इधर में फिर हम लोग k के जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस c प्लस e प्लस g डिवाइडेड बाई b प्लस d प्लस f प्लस h। वही चीज मैंने ऊपर में समझाया था। दिस इज अडेंडो। सबट्रेंडो, सबट्राहेंडो क्या बोलते हैं, if a is to b is equal to c is to d is equal to e is to f, then each of these ratios is equal to a minus c minus e minus, tell me, g is divided by b minus d minus f minus so and so। समझ में आ रहा है? यस, माइनस में। तो ये मेरा अडेंडो है। सबट्रेंडो क्या बोलता है कि a माइनस सी माइनस ई माइनस जी डिवाइडेड बाय b माइनस d माइनस f माइनस h, मतलब ईच ऑफ दीज रेशियोज इज इक्वल टू दिस। तो a by b is equal to this, c by d is equal to this, e by f is equal to this, g by h is equal to this। क्लियर? ये सारे प्रॉपर्टीज यूज होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एंड हर एक प्रॉपर्टी का अपना एक रीजन है, यानी इसका एक लॉजिकल है। लॉजिक इन द सेंस कि देयर इज अ डेरिवेशन जो अपने डिस्कस किए क्लास में, राइट? है ना? तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा? सबसे पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो क्या बोलते हैं? करेक्ट। The inverse of the ratios are also in proportion. If two ratios are in proportion, then the inverse of the ratios are also in proportion. Alternando क्या बोलता है कि when a is to b is equal to c is to d, then a is to c is equal to b is to d। Alter कर दिए अपने, interchange, है ना? So when a by b is equal to c by d, then a by c is equal to b by d। So when a is to b is in proportion to c is to d, then a is to c is in proportion to b is to d। ये alternando बोलते हैं। कॉम्पोनेंडो में दोनों रेशियोज में अपने +1 करेंगे तो वी गेट, सपोज a is to b is in proportion to c is to d, then कॉम्पोनेंडो क्या बोलते हैं? If a is to b is equal to c is to d, then a plus b by b is equal to c plus d by d। क्लियर है? यानी when a is to b is in proportion to c is to d, then a plus b is to b is in proportion to c plus d is to d। डिविडेंडो क्या बोलता है? When a is to b is equal to c is to d, then a minus b is to b is in proportion to c minus d is to d, which means a minus b by b is equal to c minus d by d। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, if a is to b is equal to c is to d, then a plus b is to a minus b is in proportion to c plus d is to c minus d। यानी a plus b by a minus b is equal to c plus d divided by c minus d। क्लियर है? सही बोला मैंने? सो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट का रिजल्ट क्या है? When a is to b is equal to c is to d, then a plus b divided by a minus b is equal to c plus d divided by
C minus D. Then addendo. So when some ratios are equal, then each of these ratios का addendo property क्या बोलता है कि each of these ratios is equal to the ratio formed where the first term is the addition of all the numerators and the second term consequent of that ratio is addition of all the denominators, addendo. So when A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F, then each of these ratios is equal to A plus C plus E divided by B plus D plus F. Subtrahendo क्या बोलता है? If A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F, then each of these ratios is equal to A minus C minus E divided by B minus D minus F. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अपर्णा को क्लियर है? Yes, sir. अभी एक एक करके पहले कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, देखना. इफ A is to B is equal to C is to D is equal to 2.5 is to 1.5, what are the values of A into D is to B into C? ये तो इजी है. A is to B is equal to C is to D, then we know that A into D is equal to C into B, which means AD by CB is equal to 1 by 1. Yes or no? So AD is to BC is equal to 1 is to 1. Clear है? Okay. So ये इसको भी एक प्रॉपर्टी की तरह याद करो. When two ratios are in proportion, अर्ज किया है, when two ratios are in proportion, then the ratio formed when then the ratio formed where the antecedent is a product of the extremes and the consequent is product of the means is always equal to 1. So when two ratios are in proportion, the ratio formed by product of the extremes is to product of the means is always equal to 1. One. क्लियर है? इसको फिक्स कर लो, यानी फिर मेरे को ये चेक करने का जरूरत नहीं है. 2.5 is to 1.5 ये चेक करने का जरूरत नहीं है. It is like a property. So when two ratios are in proportion, the ratio formed by product of the extremes is to product of the means is always equal to 1. कि then क्या फाइंड आउट करने बोला है? A plus C is to B plus D. ये कैसे फाइंड आउट करें? टेल मी. अडेंडो. कैसे अडेंडो? अडेंडो का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? बोलो. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया अडेंडो. करेक्ट. अडेंडो क्या बोलता है? बिकॉज देखो ना, इसमें क्वेश्चन में देखो, सारे न्यूमरेटर्स का सम इज टू सारे डिनोमिनेटर्स का सम पूछा है. बिकॉज रेशियो मेरे पास A is to B and C is to D है, न्यूमरेटर A and C है, तो न्यूमरेटर्स का सम इज A plus C, डिनोमिनेटर में B and D है, डिनोमिनेटर का सम इज B plus D, तो सारे न्यूमरेटर का सम इज टू सारे डिनोमिनेटर का सम, तो क्या होता है? अडेंडो.
क्लियर? यानी कि क्या समझे अपने? when A is to B is equal to C is to D, है ना? then addendo क्या बोलता है? each of these ratios is equal to A plus C by B plus D, है ना? addendo ये बोलता है ना, when A by B is equal to C by D, then both the ratios are equal to A plus C by B by D, B plus D, A plus C divided by B plus D. Clear है? Which means A plus C is to B plus D is equal to 2.5 divided by 1.5, because A is to B is equal to C is to D is equal to 2.5 is to 1.5. यानी A by B is equal to C by D is equal to 2.5 divided by 1.5. क्लियर है? सो क्या समझ पा रहे अपने कि A by B is equal to C by D is equal to 2.5 is to 1.5 is equal to A plus C divided by B plus D. यानी A plus C divided by B plus D is equal to 2.5 divided by 1.5. पॉइंट हटा दो, 5 से 5/3, यानी A plus C divided by B plus D is equal to 5/3. ये समझ में आया? yes or no? Yes, sir. वाणी को क्लियर है? Yes, sir. अभी एग्जाम्पल 2 में देखो, if A by 3 is equal to B by 4 is equal to C by 7, then prove that A plus B plus C by C is equal to 2. हम क्या देख पा रहे हैं कि इधर में सारे न्यूमरेटर्स ऐड किए हुए हैं, तो फीलिंग क्या आ रहा है? वी शुड अप्लाई अडेंडो, बिकॉज जिसको हमें प्रूव करना है उसमें सारे न्यूमरेटर्स, सारे रेशियोज के न्यूमरेटर्स ऐड किए हुए, तो अपने को फील करना चाहिए कि वी शुड यूज अ प्रॉपर्टी कॉल अडेंडो. तो अडेंडो क्या बोलता है? दैट ईच ऑफ दीज रेशियोज इज इक्वल टू the ratio formed by adding all the numerators as a first term and all the denominators as a second term. Yani each of these ratios is equal to A plus B plus C divided by 3 plus 4 plus 7 is how much? 14. क्लियर है? तो ये जो तीनों रेशियो है, दे ऑल आर इक्वल टू A plus B plus C by 14. प्रूफ क्या करना है? A plus B plus C by C. तो by C कहां से लाए? तो बाई सी लाने के लिए क्या करना है? देखो, सी वाला रेशियो को यूज करना है. सी वाला रेशियो इज सी इज टू 7. सो वी कैन से दैट सी बाई 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 14, विच मीन्स, देख लो, a plus b plus c by c is equal to 2. Hence proved. Yes or no? Clear है? हम लोग ठीक एकदम क्वेश्चन को पढ़कर समझे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है. इसका हैक मैं आपको बता दूंगा कैसे पकड़ना होता है. क्वेश्चन को पढ़कर कैसे पकड़ना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है. क्वेश्चन में हिंट मिल जाता है. क्वेश्चन में आपको हिंट छिपा हुआ मिल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को यूज कर आपको सॉल्व करना है. यही चीज मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताते जाऊंगा कि देखो ये चीज पढ़कर समझ जाना कि ये वाला प्रॉपर्टी को यूज करना होगा. राइट? यहां तक सारा डिस्कशन क्लियर है? यस और नो? ऑल ऑफ यू कंफर्म? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now example 3 is an important one.
दो वेरी इजी, दो वेरी इजी. अ डीलर मिक्सेस अ टी. ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है, रियल लाइफ. A dealer mixes tea costing rupees 6.92 per kg with the tea costing rupees 7.77 per kg. यानी जो डीलर है वो क्या कर रहा है, महंगा चाय और सस्ता चाय को मिक्स करके चाय बना रहे हैं. ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, बिकॉज माय फादर इज इन कोकोनट ऑयल बिजनेस. तो वो भी क्या करते हैं, सस्ता कोकोनट ऑयल एंड महंगा कोकोनट ऑयल को एक प्रपोर्शन में मिक्स करके, जैसे क्वालिटी भी खराब ना हो. क्वालिटी खराब नहीं हो सकता है. क्वालिटी खराब होगा तो ही विल लूज आउट हिज कस्टमर्स. तो क्वालिटी खराब नहीं करना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना है. बट कस्टमर्स दो चीज से सेटिस्फाइड होता है, गुड क्वालिटी प्लस चीप प्राइस. तो डीलर का काम क्या होता है कि दे फुलफिल दीज टू कंडीशंस. डीलर का काम क्या है, वो गुड क्वालिटी के साथ चीप प्राइस पर अपना प्रोडक्ट को बेचे कस्टमर को. तो चीप प्राइस, प्राइस को कम करने के लिए कॉस्ट को कम करना पड़ेगा. प्राइस को कम करने के लिए कॉस्ट को कम करना पड़ेगा. कॉस्ट को कम कैसे कर सकता है वो, महंगा चीज को थोड़े सस्ते चीज के साथ एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में मिक्स कर दे, जिससे कि मेरा ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए. एंड उसको एक प्रपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑल्सो. तो वही चीज इधर में है. डीलर जो है वो सस्ता चाय 6.92 पर केजी के हिसाब से इज मिक्सिंग विथ महंगा चाय 7.77 पर केजी के हिसाब से, एंड सेल्स अ मिक्सचर एट रुपीज 8.80 पर केजी. तो 8.80 per kg is what? The selling price, and earns a profit of 7.5%, यानी 7.5% on his sales price, 17.5 on its sales price, and earns a profit of 17.5, 17.5 यानी 17.5, 17.5% on his sales price. In what proportion does he mix them? तो अपने को बताना इन what proportion ये डीलर सस्ता चाय एंड महंगा चाय को मिक्स करता है. समझ में आ रहा है? ये सोनो. Yes, sir. तो इसको कैसे Yes, सॉल्व sir. करें? रनिंग नोट्स को मेंटेन करना है, मैं बोलूंगा नहीं. जैसे मैथ्स का क्लास का अपने को पता है ना कैसे करना है. जब मैं समझा रहा हूँ, क्लास में कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तो 100% अटेंशन देना है, साथ में 100% पार्टिसिपेट करना है. राइट, साथ साथ खुद भी कैलकुलेशंस करते जाना है ताकि आप आंसर को बोल पाओ. एंड यू हैव टू मेंटेन रनिंग नोट्स. यानी आपको अगर लगता है कि मेरे को ये सोल्यूशन को लिख लेना चाहिए, तो आप लोग अपने सूझबूझ से समझकर उस सोल्यूशन को लिख लेना. मैं हर क्वेश्चन के लिए नहीं बोलूंगा कि इसको लिख लो उसको लिख लो. हाँ, जो मेरे को लगता है उसके लिए मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इसको लिख लो, बट अदरवाइज आप लोग खुद के सूझबूझ से जो आपको सोल्यूशन लगता है कि लिखना चाहिए तो उसको लिख लेना. हर एक क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बोलूंगा. एंड देन क्लास खत्म होने के बाद क्लास के रिकॉर्डिंग को एक बार देखना है एंड साथ में सॉल्व करते जाना है. तो एक एक क्लास को 2 बार करना है, इससे रिवीजन भी होते जाएगा. राइट, तो क्लास खत्म होने के बाद क्लास के रिकॉर्डिंग की हेल्प से क्लास को रिवाइज करना है, तो इससे सारा चीज दिमाग में सेट होते जाएगा. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इज व्हाट? 8.80 per kg, and profit का percentage is 17.5% on
Sales price. Sales price is what? 8.8 per kg. To calculate the amount of profit per kg, 8.8 into 17.5%. How much is it coming to? 1 rupees 1.54 per kg. So this is profit per kg. This is selling price per kg. ये दोनों इंफॉर्मेशन से we can find out cost per kg. So cost per kg is equal to selling price per kg minus profit per kg, which is coming to 8.8 minus 1.54. Rupees is 7.26 per kg. So this is cost per kg of the final tea which is sold after mixing. आफ्टर मिक्सिंग यानी दोनों टाइप के टीज को मिक्स करके द फाइनल कॉस्ट पर केजी इज कमिंग टू रुपीज 7.26 पर केजी. दोनों टाइप के टीज को मिक्स करके द फाइनल कॉस्ट इज कमिंग टू रुपीज 7.26 पर केजी. तो हमें ये बताना है कि डीलर ने किस प्रपोर्शन से दोनों टीज को मिक्स किया है. ठीक है, ओके. सपोज द रेशियो इन विच द डीलर हैज मिक्स्ड द टू टीज is in the ratio x is to y. X is to y, right? Yes or no? So the two t's are mixed in the ratio x is to y. So what is the proportion of the first t? X by x plus y. है ना? फटाफट कैच करो, समझ में आ रहा है? yes or no? Yes, sir. What is the proportion of the second t? Y divided by x plus y. Suppose the ratio is 3:7. Suppose the ratio is 3:7. Example ले रहा हूं, 3:7. So first t का portion is 3/10 and second t का proportion is 7/10. Partnership accounts. 30% first t का है, 70% second t का है. To take out part of the amount. है ना? आप समझ में आया? 7.26 into x plus y. Yes, sir. क्लियर है? ठीक है. तो जो टी बना है फाइनल, उसमें सस्ता टी और महंगा टी किस रेशियो में मिक्स किए गए? एक्स इज टू वाई के रेशियो में अज्यूम कर रहे. यानी सस्ता टी का पार्ट x by x plus y, जैसे 3/3 plus 7 is 3/10, and महंगा टी का पार्ट इज y by x plus y, जैसे 7/3 plus 7 is 7/10. ठीक है, आप ध्यान से सुनो. सस्ता टी का दाम कितना है? सस्ता टी का दाम कितना है? दाम इज 6.92 पर केजी एंड महंगा टी का दाम इज 7.77 पर केजी. ठीक है, तो अब देखना मैं क्या करूंगा. सस्ता टी का दाम इज 6.92 पर केजी. देख लो, 6.92 पर केजी है.
और 1 kg में सस्ता टी का पोर्शन कितना है? x बाई एक्स प्लस वाई। सस्ता टी का कॉस्ट पर केजी इज 6.92 पर केजी, एंड जो फाइनल टी अपने मिक्सिंग करके बनाए हैं उस फाइनल टी में सस्ता टी का पोर्शन कितना है? 6.1 x बाई एक्स प्लस वाई। जो फाइनल टी अपने बनाए हैं उसके 1 kg में सस्ता टी का पोर्शन कितना है? 6 x बाई एक्स प्लस वाई। देन महंगा टी का दाम पर केजी, कॉस्ट पर केजी इज 7.77 पर केजी, एंड जो फाइनल टी हमने बनाया है उसके पर केजी में महंगा टी का पोर्शन कितना है? y डिवाइडेड बाई y बाई एक्स प्लस वाई। तो जो पोर्शन उसमें y का मिक्स किया है उसका कॉस्ट कितना है? 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। आई बात समझ में? फिर से बता रहा, ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, हमने एक टी बनाया है सस्ता टी और महंगा टी को मिक्स करके। उस टी का कॉस्ट पर केजी इज 7.26 पर केजी, और उस 1 केजी में सस्ता चाय और महंगा चाय दोनों मिक्स किया हुआ इन द रेशियो x:y। तो उस 1 केजी में, फाइनल टी का 1 केजी में सस्ता टी का मिलावट कितना है? x बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, मिलावट कितना है? x बाई एक्स प्लस वाई। दिस इज द क्वांटिटी of the sasta tea in the final 1 kg, in the final tea of 1 kg। 1 kg of final tea में सस्ता टी का पोर्शन इज 1 kg of final टी में 1 kg of final टी में सस्ता टी का पोर्शन इज x बाई एक्स प्लस वाई, एंड सस्ता टी का दाम पर केजी कितना है? 6.92 पर केजी। यस और नो? तो जो Yes. सस्ता टी मिलाया है, जितना क्वांटिटी का सस्ता टी मिलाया है उस क्वांटिटी का दाम कितना है? जितना क्वांटिटी ऑफ सस्ता टी हमने मिलाया है उस क्वांटिटी ऑफ सस्ता टी का दाम कितना है? 6.92 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। Some of this is about वेट, एंड जो हमने महंगा टी मिलाया है 1 kg ऑफ फाइनल टी में महंगा टी का पोर्शन कितना है? y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो जो महंगा टी हमने मिलाया है उसका पोर्शन इज y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और महंगा टी का दाम कॉस्ट पर केजी 7.77 पर केजी दाम इतना है, और हमने कितना मिलाया है? y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई जितना पोर्शन ऑफ महंगा टी का दाम will be 7.77 into y divided by x plus y। तो इन दोनों को ऐड करके we shall get 7.26। आई बात समझ में? क्लियर है? सर एक एक बार और एग्जाम्पल explain लेते, एक कर एग्जाम्पल दीजिएगा। लेते। सपोज x is to y is in the ratio 3:7,
यानी x का पोर्शन इज 3/10 एंड y का पोर्शन इज 7/10. नाउ 1 kg ऑफ फाइनल टी में, ये एग्जाम्पल है, 1 kg ऑफ फाइनल टी में x का पोर्शन विल बी 1 kg इंटू 3/10 यानी 0.3 kgs, and mega T का portion will be 0.7 kg. So 1 kg of final T, 1 kg of final T is made up of 0.3 kgs of sasta T and 0.7 kgs of महंगा T. Clear है? So final T, 1 kg of final T is made up of 0.3 kgs of sasta T and 0.7 kgs of महंगा T. What is the cost per kg of the sasta tea? 6.92. एंड सस्ता टी का कितना अमाउंट आपने, कितना क्वांटिटी आपने मिलाया है? 0.3 kg. एंड व्हाट इज द कॉस्ट पर केजी ऑफ द सस्ता टी? 6.92. एंड सस्ता टी का कितना क्वांटिटी आपने मिला है? 0.3 kg इन 1 kg ऑफ फाइनल टी. तो 6.92 इंटू 0.3 है ना, 6.92 इंटू 0.3 प्लस महंगा टी, 1 kg of final tea में महंगा टी is 0.7 kg. And what is the cost of महंगा टी per kg? 7.7, 7.77 per kg, 7.77 per kg. And महंगा टी का quantity in the final 1 kg of final tea is 0.7 kg. तो 0.7 kg का cost is 7.77 into 0.7. तो इन दोनों को ऐड करके we will get 7.26 the cost of the final 1 kg of final tea. Yes or no? तो अब देखो, रिलेट करो, 0.3 कैसे आया? 3/10 करके. 0.7 कैसे आया? 7/10 करके. 10 को आपने कैसे निकाला? 3 + 7 करके. अब 3 के जगह आप x ले लो एंड 7 के जगह आप y ले लो. अब आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए. यस और नो? क्लियर है? यस सर। अपर्णा एकदम क्लियर है ना बेटा? बोलो, सच्ची बोलो, है ना? आपको यस डाउट सर। नहीं होना चाहिए. वानी को भी क्लियर है? सर वो एक्चुअली इन बिटवीन माय कनेक्शन स्नैप्ड ऑफ, तो हाँ, तो थोड़ा इसलिए मैंने सा आई रिवाइज गेस। करवा दिया था अभी जस्ट. मैंने देख लिया था, आपने रिवाइज भी करवा दी. रिवीजन जब करवाया तब आपने सुना, यस सर, तब मैंने सुना। उसका क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है, चलो. तो इस तरीके से हमने ये निकाला है ना. तो 6.92 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7.77 इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7.26. ठीक है, राइट. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो सेम है, तो इट इज वेरी इजी टू ऐड देम. 7.0 cross multiply. सारे वाइज को एक तरफ ले आओ.
7.77y minus 7.26y. 7.77 minus 7.26 is coming to how much? 0. And then 7.26 minus 6.92 is 0.34. x, ठीक है। तो अब अपने को क्या चाहिए? प्रपोर्शन, यानी x इज टू वाई रेशियो। हमने अज्यूम किया था ना x इज टू वाई चाहिए। तो x इज टू वाई करने के लिए क्या करना है? 0.51 डिवाइडेड बाय 0.34 इज इक्वल टू x बाय वाई, है ना? तब मिल जाएगा x इज टू वाई। ये पॉइंट हटा, 17 से कैंसिल हो रहा है, यस और नो? 17 से कैंसिल हो रहा है 3 Yes, sir. It is. so x is to y is 3 is to 2. Okay, Yes, sir. देख लो करेक्ट है कि नहीं। नहीं, नहीं समझ में आया? x को आप y को आपने इधर लाया एंड 0.34 को आप एलएचएस में ले गए तो डिवाइड हो जाएगा, है ना? यानी सस्ता टी और महंगा टी किस रेशियो में मिक्स किया गया? 3:2। मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम विच इज लेफ्ट। हमेशा मैं क्रॉस चेक करने का एफर्ट्स डालता हूं एटलीस्ट व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग एट होम। आई ऑलवेज क्रॉस चेक। नाउ हाउ विल आई क्रॉस चेक? सस्ता टी एंड महंगा टी इज मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2, यानी सस्ता टी का पोर्शन इज 3/5 एंड महंगा टी का पोर्शन इज 2/5। डिवाइड, दिमाग में x बाय एक्स प्लस वाई, y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, दिमाग में क्या चल रहा है? x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, है कि नहीं? x प्लस वाई इज 3 + 2 5। तो जो 1 kg वेट, जो 1 kg ऑफ फाइनल टी है उसमें 3/5 सस्ता टी का है। तो 1 kg इंटू 3/5 इज 0.6 kg। एंड जो महंगा टी है उसका पोर्शन इज 2/5। 1 kg ऑफ फाइनल टी में महंगा टी का पोर्शन इज 2/5, यानी महंगा टी इज 0.4 kg। यानी जो 1 kg ऑफ फाइनल टी बना है, 1 kg ऑफ फाइनल टी बना है उसमें 0.6 kg सस्ता चाय का है एंड 0.4 kg महंगा चाय का है। सस्ता चाय का दाम पर केजी कितना है? 6.92 पर केजी। एंड महंगा चाय का दाम कितना है? 7.77 पर केजी। तो 1 kg ऑफ फाइनल टी में सस्ता टी इज 0.6 kg एंड सस्ता टी का 1 kg का कॉस्ट इज 6.92। तो इसमें सस्ते वाली टी का अमाउंट बताओ। 6.92 into 0.6 coming to how much? 4.152. 0.6 into 6.92 is coming to 4.152. एंड महंगा टी का पोर्शन दाम बताओ। महंगा टी 0.4 kg। 3.108. वेरी नाइस, चलो 3.108 108. ऐड कर दो, देखो 7.26 आया कि नहीं आया। पता है इस चीज को ना हमेशा के लिए हैबिट बना लो।
टिल द फाइनल्स, कि जब अपने कोई भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमेशा मेरे दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि सम और द अदर वे आई शुड मेक अ वे आउट टू क्रॉस चेक। क्रॉस चेक तो करना है, बट आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि इसको क्रॉस चेक कैसे करें। थिंग इज दैट कि अगर मेरे को इसको क्रॉस चेक करना है, ओके करना है वो, बट क्रॉस चेक कैसे करना उसमें भी अपना बुद्धि खटाओ। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है अंदर का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मी एज अ स्टूडेंट ऐसे करता था मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। हाउ डिड आई स्कोर 88 आउट ऑफ 100 इन सी इंटरमीडिएट? बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सर ने अगर मेरे को लिवरेज का फॉर्मूला बताया है, तो सर ने क्या किया कि इनकम स्टेटमेंट बनाया, उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ये तीनों का फॉर्मूलाज बता दिए। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि व्हाट इज लिवरेज, इन तीनों का फॉर्मूलाज ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आई इंट्रोस्पेक्टेड कि ऐसा फॉर्मूला क्यों बना। तो जैसे सर ने ये फॉर्मूला क्यों ऐसा बताया, अंडरस्टैंडिंग। तो अपने को कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हमेशा क्रॉस चेक करना है। तो क्रॉस चेक करने का मेथड भी आप ही को सोचना है। You're understanding my message? You should yourself find out the means to cross check your answer whenever you are solving any complex question. उससे क्या होगा, you will feel satisfied that whatever you have understood is correct. And cross check करने से क्या होना, एक बार अगर आपने cross check कर लिया using your style, you will never ever forget that question का आंसर। ये साइकोलॉजिकल, ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मतलब इसमें बेसिकली स्टेप्स क्या था कि पहले हमने कॉस्ट पर केजी निकाला, दो टीज मिक्स है, अज्यूम किया कि दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो x:y। तो सस्ता टी का पोर्शन इज x by x plus y एंड महंगा टी का पोर्शन इज y डिवाइडेड बाय x plus y। एंड दोनों को रेस्पेक्टिव कॉस्ट पर केजी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके वी इक्वेटेड इट टू द फाइनल कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ द फाइनल टी करके हम x:y का रेशियो को निकाल लिए, राइट। अब इसमें जिस तरीके से इन लोगों ने सोल्यूशन को प्रेजेंट किया, एक बार रीड करके देखना। इन लोग बेसिकली बिजनेस मैन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन को डिस्कस किया है। ठीक है, एक बार रीड करके खुद से समझने की कोशिश करना, कोई भी डिफिकल्टी होगा तो एक बार पूछना मेरे से, राइट। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड। हाँ, नाउ वी प्रोसीड विद द एक्सरसाइज। Question 1. The fourth proportion to 4, 6, 8 is? Very good. है ना, right? So 4:6 is in proportion to 8:x, the fourth proportion. क्लियर है? ठीक है, the third proportional to 12, 18 is, तो समझ जाओ, it is a continued Continued.
वेरी Okay. नाइस। यानी 12:18 इज इक्वल टू 18:x। X. X. तो 12/18 इज इक्वल टू 18/x। सो x इज, हाँ करेक्ट, 18 into 18/12। स्क्वायर करने से अच्छा तो मैं कैंसिल आउट करूँ ना पहले, 3/2 एंड ये 9, तो कितना रहे, 27। 7. The mean proportional between 25 and 81. This is also in continued proportion. यानी 25 is to x is equal to x is to 81. करेक्ट। और सबसे अच्छा तो अपने को फॉर्मूला पता है, b is equal to square root of the first and the third proportional। इसमें तो करने का भी जरूरत नहीं है। 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 81 का स्क्वायर रूट इज 9, 9. 5 into 9 is 45. 45। 45. वेरी नाइस। इस तरीके से पार्टिसिपेट भी करेगा ना, आई फील एनकरेज्ड। नेक्स्ट, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, सेम रेशियो टू 26 इज द नंबर इज x। तो सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। The number 6 which by has the same 26. ratio to 26, that 6 has to 13। यानी say the number is x, so x is to 26 is equal to 6 is to 13। बताओ, answer will be, answer will be, answer is 12। 12. तो ऑप्शन इज डी। None of these. इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है आंसर में, नीचे में ए दिया विच इज रॉन्ग। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 12। द फोर्थ प्रोपोर्शनल 2, so very easy, 2a by a square is equal to c by say y। तो अपने को फोर्थ प्रोपोर्शनल y निकालना है, तो ये a कैंसिल हो गया, तो 2a, 2/a इज इक्वल टू, बोलो कितना रहे भाई, ac/2। ये सोनो बानी क्लियर है, अपर्णा क्लियर है? Yes, sir. नाउ 6 में, if four numbers 1/2, 1/3, 1/5 and 1/x are proportional, then x is, this is also easy, 1/2 divided by 1/3 is equal to 1/5 divided by 1/x। So 1/2 divided by 1/3 is 3/2 and 1/5 divided by 1/x is X by 5. x by 5. So x is equal to 15/2। Right? Okay. Now the mean proportional between x 12x square and 27y square। अब इसको मैं कैसे करूंगा? So Mean 12x square by x, मतलब if you take it as x, to 12x square by x 12x square into 27 y square का स्क्वायर रूट लेंगे ना बेटा, यही बोल रहा है? Yes, Yes sir, मैं or थोड़ा no? लंबा में बोल तो देखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज एक्स एंड वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज वाई, तो वो अपने को निकल जाएगा। एंड 12 में 12 इंटू 27 करके आप कैलसी से भले निकाल सकता है, बट मैं क्या करूंगा, वो मैं उससे फास्ट बता रहा हूँ, कैलसी से फास्ट। 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 2, 3 इंटू 2, 2 into 2 का स्क्वायर रूट इज 2, 3 into 3 का स्क्वायर रूट इज 3, 3 into 3 का स्क्वायर रूट इज 3। अंडरस्टूड मैंने क्या किया?
12 can be expanded as 2 into 2 into 3. 12 is what? 4 into 3? Yani 2 into 2 into 3. And 27 can be expanded as 3 into 3 into 3. तो देखो 2 into 2 का स्क्वायर रूट इज 2, 3 into 3 का स्क्वायर रूट इज 3, 3 into 3 का स्क्वायर रूट इज 3. So 2 into 3 into 3 is how much? 18. 18xy. So B is equal to 18xy. Yani mean proportional is 18xy. ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है करने में. स्क्वायर प्लस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. ठीक है बेटा. ओके. Then A is equal to B by 2 is equal to C by 5. Then A is to B is to C can निकालना अपने को. देखो इसको कैसे करना है. क्या बोला है? A is equal to B by 2 and is equal to C by 5. Yes or no? यही दिया हुआ क्वेश्चन में, देख लो. Tell that B square equal to AC. मजा नहीं आया. देखो ना, हम लोग को निकालना है क्या? A is to B is to. पहले इसको सॉल्व करते फिर इसका हैक बता देते. हैक आप खुद से समझ जाना. ठीक है, समझ गया हैक? रेशियो इज 1:2:5. कैसे? अब इसका हैक पहले ही समझ गया आप लोग. अब इसका सॉल्यूशन A इज इक्वल टू B by 2, यानी B इज इक्वल टू 2A. A इज इक्वल टू C by 5, यानी C इज इक्वल टू 5A. तो सब है ना. So A is to B is to C is what? A is to B के जगह आपने we can write 2A and C के जगह we can write 5A. So the ratio between A is to B is to C is 1:2 is to 5. है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैथ्स के क्लास में ऐसे ही करना है. क्लास में जब मैं बता रहा हूँ कोई चीज, सॉल्व कर रहा हूँ कोई चीज, समझा रहा हूँ कोई चीज, 100% अटेंशन दो. साथ में कैलसी उठाकर करते रहो खुद खुद. एंड जो सोल्यूशन आपको समझ में आए कि लिख लेना चाहिए तो उसको लिख लो. अदरवाइज लिखने का स्ट्रेस मत लो. बट क्लास खत्म होने के बाद अपना हर एक क्लास रिकॉर्ड होता है. रिकॉर्डिंग का एक्सेस सबके साथ शेयर किया जाता है. तो क्लास के रिकॉर्डिंग को देख देख कर उसको रिवाइज करो एंड देन लिख लिख कर सॉल्व करो. ये अप्रोच है. ठीक है. देन 9 तो इजी है. ये तो ऑलरेडी अपने ऊपर एग्जाम्पल में कर चुके हैं. कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अडेंडो. बिकॉज इसमें क्या पूछे? A प्लस B प्लस C बाई C, यानी जो न्यूमरेटर है उसमें सारे रेशियोज का न्यूमरेटर ऐड किया हुआ है. तो विच यूजेस द प्रॉपर्टी कॉल्ड अडेंडो. यस और नो? तो अडेंडो क्या बोलता है कि A by 3 is equal to B by 4 is equal to C by 7. Then each of these ratios is equal to A plus B plus C divided by 3 plus 4 plus 7. कितना आ रहा है? 14. ये अडेंडो को यूज करके मिल गया. और हमें पूछा क्या? A प्लस B प्लस C बाई C. तो इसको हम इक्वेट करेंगे क्योंकि each of these ratios is equal to A plus B plus C by 14. सो इसको अपने इक्वेट करेंगे C by 7 से. तो A plus B plus C by 14 is equal to C by 7. तो मिल जाएगा अपने को A plus B plus C by C is equal to 2. So right hand side C by 7. Why you took C by 7? बिकॉज इधर में बाई C लिखा हुआ है.
ऊपर बोल रहा है कि इधर में आपने इसको C/7 से इक्वेट क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन में बाई सी है, और बाई बी होता तो हम लोग इक्वेट करते B/4, बाई ए होता तो इक्वेट करते A/3 से, राइट? क्लियर है? देन नेक्स्ट, ये तो अपने को पता ही है ना, ये तो सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। P/Q इज इक्वल टू R/S, 1:1. 1:1। ये डिस्कस किया था ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का रेशियो टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रेशियो इज ऑलवेज 1:1। Equal. राइट? ओके, ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन 1 to 10 हमने सॉल्व किया, राइट? जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है फ्रॉम क्वेश्चन 11 वो अपने नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे। आज अपने यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। समझ में आज का डिस्कशन? तो हमने प्रपोर्शन को स्टार्टिंग से रिवाइज करते हुए उसका पूरा प्रॉपर्टीज को समझा है, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व किया, देन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को सॉल्व किया है, राइट? तो अभी अपने यहीं पर स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। वी शैल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? अच्छा टाइम लगने वाला है, तो इसको एक सेपरेट क्लास में वी शैल टेक इट अप। ओके देन, Okay, sir. क्लियर है आज का Yes, डिस्कशन? sir. ओके देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, Thank you, sir. वेलकम। Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with ratio and proportion. Indices, logarithms. We were in the topic proportion, जिसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को सॉल्व कर लिया था। आज अपने प्रपोर्शन के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टिंग टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। x is to y is equal to z is to w is equal to 2.5 is to 1.5. The value of x plus y divided by y plus z is, कैसे करें इसको सॉल्व? x by y is equal to z by w। तो अगर अपने ऑल्टरनेंडो लगा दे, इट मीन्स व्हाट? x by z is equal to y by w। ऑल्टरनेंडो लगा दिया, अब अपने कॉम्पोनेंडो कर दें, यानी x प्लस जेड बाई जेड इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। यस, अब एक बार फिर से ऑल्टरनेंडो लगा दें, x प्लस जेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू z by w, and we know that z by w is equal to 2.5 divided by 1.5। डेसिमल हटाने के बाद 5/3। So the answer is 5/3, option C। क्लियर है ना? हमारे पास रेशियो था x/w, x is to w is equal to z is to w, which means x is to y is equal to z is to w, which means x by y is equal to z by w। ऑल्टरनेंडो लगा देते हैं,
z इधर में आ जाएगा, y इधर में आ जाएगा, यानी कि x बाई जेड इज इक्वल टू वाई बाई डब्ल्यू। ये मिल गया। अब इसमें कॉम्पोनेंडो लगा दो, x प्लस जेड बाई जेड इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अब इसमें फिर से ऑल्टरनेंडो लगा दो, ये इधर आ जाएगा और z उधर चल जाएगा, यानी कि x plus z by y plus w is equal to z by w, and we know that z by w is equal to 2.5 is to 1.5, यानी 2.5 by 1.5 is decimal हटाओ तो 5 by 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 5x minus 3y divided by 5y minus 3x is equal to 3 by 4। 5x minus 3y divided by 5y minus 3x is equal to 3 by 4। The value of x is to y is, calculate करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्वेंटी एक्स माइनस 12y इज इक्वल टू 15y माइनस 9x। सारे x को एक साइड ले आओ, 20x plus 9x is equal to 29x, and 15y plus 12y is equal to 27y. So 29x is equal to 27y, 29x is equal to 27y, तो x by y is equal to 27 by 29। सही है? ठीक है, तो x is to y is 27 is to 29। So option D is the correct answer, none of these, because x is to y is 27 is to 29, जो A, B and C में नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। A is to B is equal to 3 is to 2 and B is to C is equal to 3 is to 5, then A is to B is to C is, तो इसमें B मेरा मीन प्रोपोर्शनल है, तो उसको सेम नंबर का करो। सो 2 into 3 is a 6, so A is to B को 3 से मल्टीप्लाई करो, B को 6 करने के लिए A is to B को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 3 से मल्टीप्लाई होगा। So A is to B can be written as 9 is to 6 and B is to C can be written as B is to C, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो to make B equal to 6. So B is to C is 3 is to 5. B is to C is 3 is to 5. So this can be written as 6 is to 10. यानी क्या मिला मेरे को? A is to B which is equal to 3 is to 2 can be written as 9 is to 6, and B is to C which is equal to 3 is to 5 can be written as 6 is to 10। तो B जो मीन प्रोपोर्शनल है वो दोनों रेशियोज में सेम नंबर का आ गया, तो अब हम A is to B is to C को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 9 is to 6 is to 10, and the correct answer is option
A. Okay. Question number 14. X by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 7. Then the value of 2x minus 5y plus 4z by 2y is, इसको सॉल्व करते हैं. चलो लिखो पहले क्वेश्चन. x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 7. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. और अपने को 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाय 2y निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, सबको इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर देंगे. सो वी नो दैट x by 2 is equal to y by 3. So y can be written as 3x by 2. So y के जगह अपने लोग 3x by 2 को लिख सकते हैं. So y को अपने x के टर्म्स में लिखेंगे तो y is equal to 3x by 2. Similarly, we know that x by 2 is equal to z by 7. So z is equal to 7x by 2. So z can be written as 7x by 2. So y को and z को दोनों को x के टर्म्स में. अब न्यूमरेटर फाइंड आउट करते हैं. 2x minus 5y plus 4z is equal to 2x 5 into y. Y is 3x by 2 plus 4z. Z is 7x by 2. तो कितना आ रहा है, 17x by 2. दिस इज द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में 2y है and y is equal to 3x by 2. So denominator is coming to 3x. Numerator is 17x by 2. Denominator is 3x. Find the value. 17x by 2 divided by 3x. बोलो क्या आएगा आंसर. x gets cancelled. 17 by 2 into 1 by 3. करेक्ट है ये सोनू. Yes, sir. ठीक है, तो ऑप्शन में है ये 17/6. है तो 17/6 is an option D.
Next, question number 15 is the same as question number 13. तो x is to y is equal to 2 is to 3, y is to z is equal to 4 is to 3. Then x is to y is to z is, find out करो. मेरा मीन प्रोपोर्शनल y है, तो दोनों रेशियो में y सेम नंबर का होना चाहिए. तो 3 into 4 is 12, यानी दोनों रेशियोज में y को 12 करूं. तो फर्स्ट रेशियो में y को 12 करने के लिए x को और y को 4 से मल्टीप्लाई करना है, which means x is to y is equal to 2 is to 3 can be written as 8 is to 12. Then सेकेंड रेशियो में y को 12 करने के लिए y एंड z दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो y by z is equal to 4 by 3 which is equal to 12 by 9. वेरी नाइस. ऊपर का ऑप्शन डी आंसर आ भी गया. Sir, ऊपर my also D. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो अभी रेशियो इज, सबने ही निकाल लिया. सो 8 is to 12 is to 9. देन क्वेश्चन नंबर 16 में 750 division of rupees is 750 into 3 parts in the ratio 4 is to 5 is to 6. तो ये तो वेरी इजी है. आप देख लो इनमें से कौन सा रेशियो इज 4 is to 5 is to 6 के रेशियो में. A. ऑप्शन ए. सो रेशियो भी चेक करना है एंड देन तीनों अमाउंट को ऐड करके 750 आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है. सो ऑप्शन ए का जो अमाउंट है वो 4 is to 5 is to 6 के रेशियो में है एंड तीनों अमाउंट का सम टोटल इज ऑल्सो कमिंग टू रुपीज 750. ऊपर से एकदम पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट में है. ऊपर ऊपर बोल रहा है कि सर अगर रुपीज 750 पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होता और 3 पार्टनर्स है और तीनों पार्टनर्स के बीच में रेशियो इज 4 is to 5 is to 6, तो अगर अपने 750 रुपीज के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में 4 is to 5 is to 6 के रेशियो में बांट दे तो ये आता. क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. The sum of the ages of 3 persons is 150 years. There are 3 persons and तीनों persons के sum of the ages is 150 years, 150 years. 10 years ago, 10 years ago, 10 years ago यानी 10 साल पहले, their ages were in the ratio 7 is to 8 is to 9. 10 years ago, their ages were in the ratio 7 is to 8 is to 9. Their present ages are. सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये सारे जो ऑप्शंस है ये प्रेजेंट एजेस है. प्रेजेंट एजेस है तो इन सब में से 10 माइनस कर लो. 10 माइनस करके देखो रेशियो 7 is to 8 is to 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा. ये सारे जो ऑप्शंस है दे आर द प्रेजेंट एजेस. तो 10 years अगो इनका एज निकाल लो 10 माइनस करके और देखो दे आर इन द रेशियो 7 is to 8 is to 9 और नॉट. जैसे ऑप्शन ए 45 माइनस 10 इज, हम लोग एग्जाम में भी 35 ऐसे लिख देंगे, 40 एंड 45. 10 माइनस कर दिया तो 35 is to 40 is to 45 is in the ratio 7 is to 8 is to 9. 5 से डिवाइड करेंगे तो यस और नो. सो ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर है. 35 is to 40 is to 45 is in the ratio 7 is to 8 is to 9. 5 से डिवाइड करेंगे तो ओके.
Next, the numbers 14, 16, 35, 42 are not in proportion. They are not in proportion. The fourth term for which they will be in proportion is, यानी कौन सा फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए जिससे प्रपोर्शन में आ जाए. फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए? फोर्थ टर्म इज डेफिनेटली नॉट 42. तो 42 की जगह में 40. फोर्थ टर्म. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कैसे क्या? 14:16 is equal to 35:x. So x is equal to what? है ना? है कि नहीं? फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है. 42 is not the fourth term. Yes, sir. Because if 42 is the fourth term, they are not in proportion. So what should be the fourth term? That they will be in proportion. तो अपने को फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है. तो फोर्थ टर्म को x लेते हैं तो 14:16 is equal to 35:x. So ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है. 7/8 5. तो x is equal to 40. Option B is the correct answer. अभी क्वेश्चन 19. x by y is equal to z by w, which implies y by x is equal to w by z. So then the process is called what? Tell me the correct answer. It is called invertendo. Inverse. कौन कौन correct answer दिया? Correct. So option is D, none of these, because x by y is equal to z by w. So invertendo का property क्या बोलते हैं? If x by y is equal to z by w, then y by x is equal to w by z. So ये invertendo है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. फटाफट 20. P by Q is equal to R by S is equal to P minus R divided by Q minus S. The process is called. वेरी गुड. इस बार तो अपन ए. करेक्ट. कंपटीशन है बाप रे. अनेबल टू जज कि कौन पहले आंसर कर रहा है. वेरी गुड. इट इज सब्ट्राहेंडो. सब्ट्राहेंडो. चलो 21. कौन सबसे पहले कर रहे हैं? A by B is equal to C by D implies A plus B by A minus B is equal to C plus D by So C. C component. C. Answer is option Componendo and dividendo. componendo and dividendo. Componendo and dividendo don't apply. Very good. Then 22. U by V is equal to W by P. Then U minus V by U plus V is equal to W minus P divided by W plus P. ये भी क्या होगा बोलो? Componendo and dividendo. Sir, alternate. Componendo and dividendo को निकालकर इन्वर्टेंडो कर दिया है. नहीं समझा? कॉम्पोनेंट मैं बता रहा हूं ना. कॉम्पोनेंडो करने से क्या होगा? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करने से क्या होगा? u प्लस वी डिवाइडेड बाय u माइनस वी इज इक्वल टू w प्लस p डिवाइडेड बाय w माइनस p. ये सोनो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करने से ये हो जाएगा. अब इनवर्टेंडो कर दो. इनवर्टेंडो करने से u माइनस वी डिवाइडेड बाय u प्लस वी इज इक्वल टू w minus p divided by w plus p. So this is componendo and dividendo with
इनवर्टेंडो, यस और नो? समझ में आया है? बानी अभी क्लियर है बेटा Yes, आपको? sir. Yes, sir. So option D, none of these. So componendo and dividendo with invertendo. Next. Question number 23. 12, 16 and asterisk 20 are in proportion. Then asterisk is. Yani 12 by 16 is equal to x by 20. T. Answer is option C. A. Correct है, yes or no? करके देखो. ये क्या हो रहा है? 15, sir. तो वही तो बोला ना, करके देखो. हड़बड़ाना C. नहीं है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 15. अभी हड़बड़ाना नहीं है अपने को. क्वेश्चन नंबर 24 में 4 by x is equal to 9 by 13.5. 13 and a half is 13.5 लिख रहे हैं. So x is equal to 4 into 4 into 13.5 divided by 9. करो, x का वैल्यू निकालो. 6. A. आंसर इज ऑप्शन ए, A, 6. 6. ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट. द मीन प्रपोर्शनल. मीन प्रपोर्शन का तो फॉर्मूला अपने क्या लगाते हैं? b इज इक्वल टू रूट ओवर 1.4 इंटू 5.6. तो 1.4 इंटू 5.6 का स्क्वायर रूट करो, कितना रहे? 2.8 ग्राम्स, है ना? 1.4 इंटू 5.6 is coming to 7.84. उसका स्क्वायर रूट इज 2.8 grams. So answer is option B, 2.8 grams. Then question number 26, ये हमने बहुत बार कर लिया है. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. a by 4 is equal to b by 4 is equal to c by 9. Then a plus b plus c is, करो. ये तीनों रेशियोज जो है, all the three ratios, each and all the three ratios will be equal to a plus b plus c divided by 4 plus 5 plus 9. तो 4 plus 5 plus 9 is 18. So a plus b plus c by 18. ठीक है, हम लोग को चाहिए a plus b plus c by c. So this a plus b plus c by 18 is equal to c by 9 because ये तीनों ratios is equal to this a plus b plus c by 18. तो अभी के लिए a plus b plus c by 18 को अपने इक्वेट कर रहे हैं c by 9 से. So a plus b plus c by 18 is equal to c by 9. तो क्या आंसर आ रहा है? a plus b plus c by c is equal to 2. Yes or no? Yes, sir. So answer is option B. Okay. Two numbers are in the ratio. Two numbers are in the ratio 3:4. If 6 be added to each number of the ratio. तो सोचो, two numbers are in the ratio 3:4. So let the numbers be Sir, 3x and option C. option T. C. Okay. कैसे निकाला? क्या ट्रिक यूज किए? Sir, it is written that 3:4 are in ratio, and if 6 will be added to both of them, it will be 4:5. So I have written 3x plus 6 by 4x plus 6 equal to 4/5. अच्छा,
सो आपने क्या किया, लेट द नंबर्स बी 3x एंड 4x, तो 3x प्लस 6 बाई 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 4/5, है ना? Yes, sir. तो देन इसको सॉल्व करके आंसर इज ऑप्शन सी, करेक्ट। बाकी सबका भी यही है, सबको क्लियर है कि सॉल्व करना है इसको। x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 16x प्लस 24, यानी 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, so 3x is 18 and 4x is 24, 18 and 24. चलो, then 28, very easy, a by 4 is equal to b by 5, then बोलो कौन सा सही है, ए बी सी में से कौन सा सही है? तो बी। कॉम्पोनेंट बी, क्या प्रॉपर्टी B. यूज, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया आपने, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन है। Then if a is to b is equal to 4 is to 1, then square root of a by b plus square root of b by a is, तो a by b की जगह 4/1 प्लस b by a की जगह 1/4, ये सोनो 4/1 का यस सर। स्क्वायर रूट इज 2, 4/1 का स्क्वायर रूट इज 2 ना, 4 by यस 1 सर। is 4, 4 का square root is 2, then square root of 1/4 is 1/2, so the answer is 5/2, 2 plus half is 5/2, 2.5 is 5/2, right? क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में ये दिया हुआ है, if x by b plus c minus a is equal to y by c plus a minus b is equal to z by a plus b minus c, then अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड इज, ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। सो अपने क्या करेंगे, लेट ऑल द रेशियोज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट है, ठीक है? तो चलो अब के से सॉल्व करते हैं इसको। आ गया। यानी कि सारे रेशियोज को इक्वल टू के पकड़ लो, यानी कि x बाई बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू के, सो x इज इक्वल टू के बाई के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये हुआ। दिस यू गॉट फ्रॉम द फर्स्ट रेशियो। सेकेंड रेशियो में y डिवाइडेड बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के, सो y इज इक्वल टू के इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ये सेकेंड रेशियो से आया। थर्ड रेशियो से z इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये थर्ड रेशियो से आया। और अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड। तो वी नो द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, सब्स्टिट्यूट कर दूं। सो एक्स की जगह लिखोगे आप, बोलो
k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, y की जगह लिखोगे k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करके देखो क्या आ रहा है। एक्सपैंड करके देख लो, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके देखना है क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से, देखना एक्सपैंड करके क्या आ रहा है। जो आएगा आंसर वही आपका मतलब वही आंसर होगा, वही करेक्ट आंसर, और क्या। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं शेयर कर देता हूँ कम्युनिटी में, ठीक है। बट इसको आप खुद से एक बार एक्सपैंड करके देखोगे कि क्या आ रहा है। अल्टीमेटली एक्सपैंड करके जो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है वो करना है, ठीक है। क्लियर है? सर आप एक बार ये बता सकते हो कि हाउ डिड वी गेट बी माइनस सी होल अरे ये इनटू, सर नीचे, हाँ, हम्म इक्वेशन 3 के नीचे उसके बाद कैसे डिराइव हुआ? तो एक्सपैंड करना है इसको बी से। नहीं सर, बी माइनस सी एक्स प्लस सी मैं माइनस ए ए होल है, वो कैसे अचीव हुआ? मैं नहीं समझा, एक बार फिर से रिपीट करो। सर आपने इक्वेशन 3 के नीचे जो नेक्स्ट स्टेप किया है ना, हम्म बी माइनस सी ब्रैकेट में और उसके हम्म बाहर एक्स प्लस सी, तो सर आपको ये डिराइव कैसे हुआ? ये डिराइव नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है। आह, ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू तो अपने को फाइंड आउट करना है। ओ ओके सर। मैं एक तो आपको करके दे देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। तो जैसे बी इंटू के बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर के, ये ऐसे लिखो के बी स्क्वायर। के बी स्क्वायर, देन बी इंटू के सी इज इक्वल टू के बी सी, देन बी इंटू माइनस के ए इज इक्वल टू माइनस के से करने से अच्छा सबसे पहले के कॉमन ले लो, पता है कैसे? ऐसे, क्योंकि के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाएगा। सब में के कॉमन ले लो। सबसे के कॉमन ले लिया, के कॉमन ले लिया। अब एक्सपैंड कर लो। अब के का झमेला हटा बिकॉज के को कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, है ना। फिर हमें सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर
प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखना क्या हो रहा है। बी स्क्वायर इधर कैंसिल आउट हुआ, प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। फिर से माइनस, नहीं, इसका नहीं है। हाँ माइनस बी सी और इधर में प्लस बी सी है। अच्छा। सभी को तो आपने एक साथ ऐड कर दिया ना फिर। सी स्क्वायर ए आंसर वन है सी, बोलो क्या आएगा आंसर। ए सी वन। अच्छा, सब कैंसिल होने से वन आता है। अच्छा, है ना, सब कैंसिल होने से वन आता है, यानी 1 - 1 इज 1, 10 - जीरो। 10 इज 10, 10 - 10 इज 1, बिकॉज जीरो 10 10 कैंसिल हो गया तो क्या होगा, बोलो जीरो। जीरो जीरो। हाँ, तो चीज नहीं होना चाहिए ना, तो सब कैंसिल आउट होने से जीरो आता है, सो k into 0 इज 0, सो द आंसर इज 0, सो द आंसर इज 0। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, यस सर। क्लियर है, समझ में आया। तो इसी के साथ प्रपोर्शन का एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सॉल्व कर लिया। समझ में आया, ये सुनो, कोई डाउट, क्लियर नो है। सर। यस सर। ओके।